Hello, everyone. Good evening and welcome to Stockage Smart Session. So today we're going to talk about related to scan combination scans. So we have Yash with us. So Yash, hi, and thank you for joining this evening. Hi Swati, thank you so much. So Yash, could you just kindly set the agenda for today? आज का agenda क्या है? थोड़ा आप उसके बारे में clarity दें. And then, of course, you can proceed further. Okay, Swati. Yeah. Hello everyone, wish you all a very happy Ram Navami. आप लोग सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. I am Yash Saraf. I am from the Stockage product team, data team, and today I will be taking a smart session like all Wednesdays on Stockage. Very on three key important features of Stockage, that is Stockage scans, my combination scans and trending stocks. So हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के इस सेशन के अंदर तीन पार्ट्स होंगे. Basically, initially I will be explaining about how to use Stockage scans. Then we'll have a small Q&A session where I will be solving all the doubts and queries with respect to scans. Then we'll proceed with the my combination scans. Then again we'll have a Q&A session, and then in the end we'll go with the trending stocks. And then in the end, I will tell you all that how to get benefited and how to enhance your trading and investment journey with the help of using scans, combination scans, and trending stocks in complementary, in sync, right? Like how you can use all these three features and enhance your daily analysis of stock markets and your enhance and upgrade your stock picking skills, right? So without wasting any more time, let's start with Stockage scans. So let me first clear, as we all know, Stockage is an EOD application. That means we believe and we provide data on an EOD basis, end of day basis. And Stockage is the first market platform to launch scans, and we are providing 450 plus scans. हम लोग 450 से ज्यादा scans provide कर रहे हैं, and that to 70% of these 450 plus advanced scans are totally free. So आप लोग जब भी चाहे इसको आप लोग उसको शेयर कर सकते हो अगर आप लोग को डेटा लग रहा है. एंड आप लोग इसको और आगे जाके आप लोग जैसे जैसे आप लोग सारे स्कैन्स के डेटा को यूज करोगे, आपको समझ में आएगा कि सारा स्कैन्स का डेटा कितना ज्यादा हेल्पफुल है, कितना ज्यादा रिलेवेंट है इन दी मार्केट स्टडी. सो अब मार्केट में क्या है ना कि मार्केट में देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स. मतलब मार्केट मूव्स अराउंड मल्टीपल डेटा पॉइंट्स. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर आउट देयर टू ट्रैक एंड study each and every data point. So what we have done in Stockage is कि हम लोग ने स्कैनर्स बनाए हैं, एंड स्कैनर्स में हम लोग ने ऑलमोस्ट जितने भी डेटा पॉइंट्स है मार्केट में अवेलेबल, हम लोग ने उनको 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. एंड दो 7 कैटेगरीज आर प्राइस स्कैन्स, विच मीन्स कैप्चरिंग द प्राइस एक्शन. हम लोग प्राइस एक्शन को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस स्कैन्स. देन वी हैव वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. इससे हम लोग मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हम लोग उसको ट्रैक करते हैं. देन वी हैव द टेक्निकल स्कैन्स कैप्चरिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी, द टेक्निकल strength of stocks on the charts. Then we have fundamental scans capturing the fundamental strength of the stocks. Then we have futures and option scans, strike price option scans and candlestick scans. ठीक है. तो इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग फर्दर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि आप कोई भी स्कैन यूज करो, कोई भी चीज करो, आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि हाउ आर दी स्कैन्स फॉर्म्ड, हाउ आर दी स्कैन्स डिराइव्ड, राइट? ये स्कैन्स जितने भी है ना, ये सारे के सारे स्कैन जितने भी डेटा के वो बेस है, दिस इज नॉट अ मैनुअल ड्रिवन डेटा. ये सारा का सारा वही डेटा है जो उन सारी स्टॉक्स रिपोर्ट कर रही है एक्चुअली. उन स्टॉक का एक्चुअल ओपन हाई लो क्लोज क्या है, वो स्टॉक में एक्चुअली उस दिन कितना ट्रेड्स हुआ, वॉल्यूम एंड डिलीवरी हुआ, उस स्टॉक का क्या फंडामेंटल है, क्या सेल्स है, क्या नेट प्रॉफिट है. तो ये जो सारा का सारा डेटा है, ये सारा का सारा डेटा कंपनी जो रिपोर्ट कर रही है, कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, वही एग्जैक्ट डेटा है. ऐसा कुछ भी नहीं कि वी एट स्टॉकेज आप मैनिपुलेटिंग और डूइंग समथिंग डेटा. वी आर जस्ट हम लोग एक अलग अलग जो मार्केट प्रूवन स्टैंडर्ड्स हैं, जो मार्केट प्रूवन जो हम लोग की सालों से बैक टेस्टिंग करके जो हम लोग ने लॉजिक डिराइव की है, हम लोग उस डिराइव के बेसिस से पावरफुल स्क्रीनर्स बनाते हैं. ठीक है.
तो हम लोग को अगर ये बेसिक समझ में आ जाए ना कि ये स्कैन्स कैसे बन रहे हैं एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, सो आप लोग सभी के लिए एंड फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स इट विल बी वेरी मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ईच ऑफ दी स्कैन्स। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस स्कैन्स। सो इन प्राइस स्कैन्स एज आई सेड वी ट्राई टू कैप्चर द प्राइस एक्शन ऑफ द स्टॉक्स। सो इसमें आपको प्राइस स्कैन्स के अंदर आपको काफी पीरियोडिक स्कैन्स मिलेंगे कि पीरियड बेस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्कैन्स या बिहेवियर स्कैन्स, जैसे प्रीवियस डे ब्रेकआउट, क्लोजिंग अबव प्रीवियस हाई, क्लोजिंग बिलो प्रीवियस लो। ठीक है, ये एक बेसिक सा वन डे ब्रेकआउट स्कैन्स है। इसमें इसका एक बेसिक लॉजिक है, दैट इज कौन सा स्टॉक है जो कल के मेरे लास्ट डे के प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया, कौन सा स्टॉक है जो मेरे लास्ट डे के प्रीवियस लो के नीचे क्लोज किया। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि हम वो स्टॉक वन डे के अंदर बुलिश है, वन डे के अंदर बेरिश है। ठीक है, इन अ सिंपल सेंस। तो विदाउट प्रोसीडिंग फर्दर व्हाट विल आई डू इज कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ स्कैन्स के एग्जांपल दूंगा एंड उसके स्कैन्स के थ्रू मैं आप लोग को स्कैन्स का जो पूरा मॉड्यूल है, जो पूरा सेक्शन है, कैसे यूज करते हैं मैं आप लोग को वो सिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग को अगर एक स्कैन यूज करना समझ में आ गया तो आप लोग जैसे जैसे हर स्कैन को यूज करने लगोगे आपका जो यूजेबिलिटी है एंड जो आपका हैंड्स ऑन ग्रिप है वो ज्यादा बेटर होता रहेगा। इट विल बी गेटिंग बेटर डे बाय डे। So, for example, we are talking about weekly breakout scans. Close crossing last week high. ठीक है, तो मैं इस पे स्कैन पे क्लिक किया। अब इन स्टॉकेज वी ट्राई टू एम्फसाइज कि वट एवर नेमिंग वी प्रोवाइड टू एनी ऑफ द फीचर और एनी ऑफ द स्कैन्स, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, so that our users don't find it difficult in understanding the meaning of it. So it is like very much clear in simple sense that close crossing last week high. What does it means? It means that it will filter out those stocks which have closed above last week's high, right? Crossed the last week high from below and closed above it. अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारा राजा एनर्जी का बात करें, उसके पहले मैं ये बता दूं कि आज मार्केट ऑफ था तो रामनवमी की वजह से, तो इसीलिए 16 अप्रैल दैट वाज येस्टरडे, ये जो सारा डेटा है ये कल तक का डेटा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे दिख रहा है हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, ये सबसे टॉप पे है। इसका लास्ट वीक का हाई था 920.95। अब ऑब्वियसली ये लास्ट वीक 920.95 के नीचे क्लोज किया होगा। अब इस स्टॉक ने 920.5 के नीचे से इसको क्रॉस करके 920.95 के ऊपर येस्टरडे 967.95 पे क्लोजिंग दिया, दैट इज स्ट्रेट अवे विद अ 10.9% इंक्रीज एंड अपने लास्ट वीक के हाई के 5% ऊपर क्लोज किया। मतलब दिस स्टॉक इज शोइंग अ पॉजिटिव मोमेंटम और ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड ऑन अ वीकली बेसिस इन टर्म्स ऑफ लास्ट वीक। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब अगर मैं आप लोगों को इसको और लेमन भाषा में समझाऊं, इफ अगर किसी स्टॉक का लास्ट वीक का हाई वाज 100 रुपीज एंड इट क्लोज्ड एट से समवॉट 95, एंड देन इस वीक के अंदर किसी भी ट्रेडिंग डे में अगर कोई स्टॉक 100 को नीचे से क्रॉस करके फॉर एग्जांपल 95 पे क्लोजिंग किया, इस वीक में अगर ये स्टॉक जिस दिन भी 95 से क्रॉस करके 100 के ऊपर क्लोजिंग देता है, फॉर एग्जांपल 102 और 103, then that stock will qualify for close crossing last week high. This is how this stock is being filtered in this scan. अब आप लोगों को विदाउट गोइंग एनी फर्दर मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये जो मेजर स्टॉक्स है, दिस मेजर स्टॉक्स फिल्टर, इट इज अ स्टॉकेज इन हाउस फिल्टर, विच मीन्स कि in stockage we believe ki if we understand the top stocks of the market, right, the top market cap stocks of the market, then we get to know the feeling of the market, we get to know and understand the trend of the market. इसीलिए what we have done is we have combined the top NSE 500 stocks and top BSE 500 stocks and combined those stocks in a list, and we have filtered those lists with the name of major stocks. So what is major stocks? Major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. ठीक है, सो एज वी कैन से हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, इफ वी सी इसका चार्ट, तो इसका चार्ट में क्लियर कट एक अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यस्टरडे द मार्केट्स वे डाउन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट
yesterday markets were down, the stock gave a 10.91% of return in just one single day, which means कि this stock is, अगर कोई स्टॉक खराब मार्केट के अंदर, अगर मार्केट्स डाउन है, उसमें भी अगर वो स्टॉक बढ़ के अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है कि जब व्हेन मार्केट्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, then that stock will also outperform the market on a much better scale. ठीक है, so eventually this stock should perform well tomorrow, if anything, not if there is no any bad news or no profit booking or something like that. ठीक है, so this is not a tip, I'm just giving you a one basic interpretation of a scan output. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप जैसे इसमें और आप इसको बेटर टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अब जैसे यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं, अब इफ यू गो बैक एंड इफ यू सी देयर आर 24 stocks filtered in this output. That is because of the major stock, that is 24 major stocks. If I remove this cross, then you will see that the number is still 24 stocks, because that 24 stocks is only the number of major stocks. We do not provide the count of all stocks uh, in the back section. So let me put the major stock filter again. Right. Obviously there are 24 stocks, but if you want to filter out more among these 24 stocks, then what you can do? For that we have the advanced filter section. Over here we are providing advanced filters on the basis of buy importance. That is कि अगर आप लोगों को खाली NSE स्टॉक्स फिल्टर करना है, या BSE स्टॉक फिल्टर करना है, या NSE FO स्टॉक्स फिल्टर करना है, या for those participants who are new to market and they only want to track Nifty 50 stocks, then what they can do is they can just apply the filter of Nifty 50 and they can put apply. So on the, as you can see, there is no stock in Nifty 50 which has been able to close cross above last week high, because obviously in the last week markets were trading at all time high, and within 2 days, that is Friday, Monday and Tuesday, after the 3 day, the markets have fallen quite a bit, so it will take time. So none of the Nifty 50 stocks have been able to close cross its last week high, so which provides a clear cut signal that the Nifty is not in a good zone right now, it is not in a bullish zone right now, it is in a bearish zone. So what other filters we have? You all can filter from the price filter, depending on the price you want to choose. Then you also can filter the stocks list on the basis of the market cap category. That is, if you want to filter out only large cap stocks, or you want only want to filter out small cap stocks, then accordingly you can filter out those stocks. Also, if you want to filter out any sector, for example, if you want to filter out automobile sector, or you want to filter out banking sector stocks only, then you can choose the appropriate respective filter that you want, and accordingly the stock list will get filtered. So this was one feature by which you can more filter the data. For in those scans where there are hundreds of stocks, let's say 150 of stocks, over there this filter option enables you to reduce the list to a smaller number of stocks, so that your analysis can go better. Also, we provide this download feature, with the help of which you can download the list of stocks as per your required filters, and accordingly आप आगे जाके अपना एनालिसिस को और आगे बढ़ा सकते हो इन योर एक्सेल शीट, वॉट एवर कैलकुलेशन यू वांट टू डू, आप लोग वहां पे कर सकते हो. अब सबसे बेस्ट फीचर जो है कि आपको अगर किसी भी स्कैन को टेस्ट करना है कि कोई भी स्कैन कैसा परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट कैसा आता है, फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रोवाइडेड 7 days of historical data. With this 7 days of historical data, what you can do is you can back test the scan. आप बैक जाके चेक कर सकते हो कि ये स्कैन्स कैसे आउटपुट प्रोवाइड कर रहे थे, एंड वही सारे स्टॉक्स उसके प्रिवेलेंट कमिंग डेज में कैसा परफॉर्म कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं केपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड का बात करूं, विच वॉज ऑन दिस 15 को इसने एक अच्छा खासा मूव दिया, एंड उसके बाद इस स्टॉक में एक छोटा सा करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, एंड इवेंचुअली येस्टरडे मार्केट्स वर आल्सो डाउन, सो यू कैन सी कि हाँ, इस स्टॉक ने एक अच्छा कंटिन्यूड मूवमेंट नहीं दिया. So that way, depending on the markets, obviously you will have to check how the markets are performing. Depending on the markets, you can backtest each and every scan with respect to 7 days period. Now,
फॉर एग्जाम्पल देर 450+ स्कैन्स. तो अगर आपको किसी भी स्कैन को समझना है, या इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्कैन, then stockage के अंदर what we have done is we have provided an I section for each scan wherein you can go and understand and read the meaning and significance of each scan. आप हर स्कैन का मतलब, हर स्कैन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या डेटा डिराइव कर रहा है, किस बेसिस पे डेटा डिराइव कर रहा है, आप वो समझ सकते हो, which will eventually help you all to filter out and to pick the best scans that can be best, that can be suited for your strategy, for your trading style. Also, we do also have videos for learning sessions for all those scans, so you can also eventually check and watch the videos for better understanding of the scans. सो दिस वाज अबाउट द क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. सो मैंने अभी आप लोगों को एक स्कैन का मॉड्यूल समझाया कि स्कैन में क्या क्या कंपोनेंट्स है, राइट. हम लोग ने, मैं एक बार वापस से ब्रश अप करता हूँ. सबसे पहले हम लोग का फिल्टर स्टॉक का लिस्ट है, जिसमें से आप उसमें एक एक स्टॉक में जाके चेक कर सकते हो कि वो स्टॉक एक्चुअली चार्ट में कैसा लग रहा है. देन वी हैव द फिल्टर ऑप्शन वेयर इन यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स at one go and you can reduce the filtered list of stocks. You can also download these stocks. You can also backtest the respective scan uh, on a period of 7 day, on a period of 7 historic days. And also what you can do is you can also share the output, कि अगर आपको किसी के साथ अपना आउटपुट शेयर करना है या आपको आउटपुट कहीं पे अपलोड करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. तो ऐसे करके थे मल्टीपल मोर स्कैन्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था वीकली ब्रेकआउट के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को ये समझना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 52 वीक लेवल पे ब्रेकआउट दे रहे हैं या ऑल टाइम ब्रेकआउट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो मैं आप लोग को ऑल टाइम ब्रेकआउट समझाता हूँ. सो ऑल टाइम ब्रेकआउट में यू मस्ट बी सीइंग कि देयर आर मल्टीपल स्कैन्स. क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन, क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन. So before proceeding further, let me explain you what is this zone, high zone, low zone. ठीक है. सो जोन इज अ 15% रेंज ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज, एंड सो 100 रुपीज के बेसिस पे उसका जो 15% जोन हो जाएगा, दैट विल बी 85 to 100. सो एज सून एज इफ एनी स्टॉक एंटर्स इन टू दिस जोन और क्लोजेस विद इन दिस जोन, then that stock will be classified as stock trading between within its all-time high zone. ठीक है. So why we have denoted this zone level, I will tell you in some few minutes. So सबसे पहले close crossing all-time high. So इसमें we are getting to see the list of stocks that have closed above their previous all-time high. मतलब इस स्टॉक, ये सारे वो स्टॉक्स है जिन्होंने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को नीचे से ब्रेक करके. बट अब इसका दो इंटरप्रिटेशन है. पहला, कि या तो ये स्टॉक्स अपना ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेंगी. दूसरा, कि ये सारे स्टॉक्स के अंदर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज का नाम लूं, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर मैं, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का मैंने मंथली चार्ट 10 ईयर्स का खोल के रखा है. तो एज वी कैन सी कि इस एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो ऑल टाइम हाई था वो फेब मंथ का था, दैट वाज 354. उसके बाद इस स्टॉक ने इसी महीना में एट दिस लेवल एक नया हाई बनाया. उसके बाद वो नया हाई बनाया जा रहा है, राइट. सो ऑब्वियसली ऑन अ डेली बेसिस एक्साइड इंडस्ट्री इज मेकिंग इट्स ऑल टाइम हाई, एंड अभी जो स्टॉक का करंट जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 470.40. ठीक है. तो इससे क्या समझ में आता है कि या तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, दैट वाज 354 लेवल से ऑलरेडी ये स्टॉक 460 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ स्ट्रेट अवे 100% 100 पॉइंट इंक्रीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30% इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई. तो अब या तो ये हो सकता है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा और आगे और कंटिन्यू कर सकता है, या स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस स्टॉक इन एडवांस. ठीक है. उसके लिए एडवांस करने के लिए
what we can do is we can use these scanners, close within all time high zone or close entering all time high zone. For example, this. So as I described earlier, what is this zone? This zone is the 15% range from its all-time high. So if any stock that has a potential to cross and make a new all-time high, are these stocks that have entered into their all-time high zones. Obviously, इन लोग को अपने जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ना वो जाके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं, राइट। उन लोग को 85 से 100 का जर्नी को पास करना पड़ेगा। सो वो हम लोग तभी फिल्टर कर ले रहे हैं जब वो स्टॉक्स 85 के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज वो अपने 15% जोन के अंदर घुस रहे हैं। सो दैट अगर कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन में जाके घुस के, अगर वो पोटेंशियल कैंडिडेट है अपने एक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, तो उसका वो चार्ट्स पे वो दिखेगा कि हाँ ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो एक अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ऑन यस्टरडेज का डेटा बात करूं, तो ये 6 स्टॉक हैं जो अपना एक नया ऑल टाइम हाई डेटा बनाने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। एंड एनी टाइम सून इफ मार्केट्स support them and if the respective stocks are very sound technically, then there's a very high possibility जब आप ये सारे 6 स्टॉक्स का आप देख सकते हो कि कुछ टाइम में एक नया ऑल टाइम हाई लग जाए। सो ये स्कैन उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों को ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आने के पहले उन सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद तो वो मूवमेंट आ चुका होता है। लाइक आई सेड, अगर कई बार ऐसा क्या होता है कि many stocks give a breakout and then there's a profit booking, and many retail people enter in those stocks after having the breakout, after the breakout is done. So they enter at high levels and then there's a profit booking, due to which they are stuck at higher prices, right? And then eventually that stock will again take some time to make a new all-time high or to come at the buying levels. So that is why it is better to identify the potential breakouts earlier, so that आपका जब आप लोग जब एंट्री बनाओ अपने स्टॉक्स के अंदर, तो आप लोग इवेंचुअली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो और बेटर होगा, क्योंकि आप लोग ने पहले से एंट्री करके, आप लोगों ने नीचे दाम पे एंट्री करके उसमें आपने ऑल यू गाइस हैव डन इज ट्राई टू कैप्चर दैट ब्रेकआउट। ठीक है, rather than entering after the breakout, you guys can enter before the breakout might happen। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है। तो ये जो आपको जोन वाले जो स्टॉक्स है, हाई जोन या लो जोन वाले, ये आपको हर किसी में मिलेंगे। दैट इज आपको ये 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स के अंदर भी मिलेंगे, या आपको 2 ईयर ब्रेकआउट स्कैन्स, 5 ईयर ब्रेकआउट स्कैन्स के अंदर भी मिलेंगे। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट दी स्कैन्स ऑन अ डेली बेसिस। यू नेवर नो कि कौन सा स्टॉक है जो अपने 2 ईयर ब्रेकआउट के पास है, या 5 ईयर ब्रेकआउट के पास है, या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के पास है। सो इफ यू कीप अ हैबिट, इफ यू मेक अ हैबिट कि आपको कुछ कुछ स्कैन्स है जो आपको डेली बेसिस पर ट्रैक रखना है, राइट, कि इस डेली बेसिस में इन स्कैन्स के अंदर ये आउटपुट आ रहा है। सो यू विल नेवर मिस ऑन अपॉर्चुनिटीज, यू विल ऑलवेज गेट टू नो इन दी बिफोर हैंड ओनली कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकते हैं। वन डे बिहेवियर, 2 डे बिहेवियर, relative performance scans। Then I will like to explain RS 55 day scans। ठीक है, so what is this RS 55 days? A relative strength 55 days is a model, is an indicator that is created by Vivek sir, and it is blindly followed by Vivek sir because he loves this indicator and he strongly believes in this indicator, in this scans, because he is a firm believer of it। and अगर आप लोग ने विवेक सर का वीडियोस देखा है, तो आप लोग पक्का ये नोटिस किया होगा कि विवेक सर कई बार अपना RS 55 मॉडल का टर्म यूज करते हैं। RS 55 मॉडल का आप लोगों का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी देखोगे तो उसके अंदर भी RS 55 का जो इंडिकेटर है वो उन्होंने ऐड करके रखा हुआ है। सो इट इज ओनली बिकॉज कि ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस इंडिकेटर। एंड उनके कई सारे एंट्री एग्जिट पोजीशंस अगर आप स्टॉक सोशल पे भी देखोगे, सो इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन, मतलब RS 55 is one of the reasons, is one of the reasons, or what I can say, one of the indicators on the basis of which he decides its entry and exit position, as he has said it multiple times in his videos and his posts। सो इसमें कई सारे ऐसे स्कैन्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे हैं या आउट परफॉर्म करना चालू ही किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो। सो अगर मैं ये देखूं कि ये 3 स्टॉक है
जिन्होंने येस्टरडे, एज पर येस्टरडे, अपने बेंचमार्क इंडेक्स का आउट परफॉर्म करना चालू किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको जाके बैक टेस्ट करता हूँ, सो IRCTC 15th को इस स्टॉक ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना चालू किया है। तो अगर मैं इसको जाके चेक करूं, तो उसके बाद से वापस नीचे ही गिरा है। लेकिन अभी भी इसका जो RS मॉडल है, इसका जो RS है, ये नीचे, ये जीरो के नीचे नहीं आया, मतलब दिस स्टॉक इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स। तो ऐसे करके आप कई सारे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आपको मार्केट टू मार्केट डिपेंड करना पड़ेगा, बिकॉज इफ मार्केट इज इन अ बुलिश रन, अब बुल रन, तब अगर कोई स्टॉक अपने निफ्टी 50 को, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना चालू करता है, तब वो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करता है फॉर सम स्पैन ऑफ टाइम। सेम वे में अगर कोई स्टॉक, मार्केट्स खराब है, राइट, मार्केट्स खराब है, एंड अगर आप इसको देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग बिलो जीरो, विच मीन्स कि ये वो सारे स्टॉक्स है जो करंट मार्केट के अंदर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज वेरी मच एप्लीकेबल कि अगर मैं 15 तारीख का आपको डेट दिखाऊं, बोरोसिल रिन्यूएबल्स 3.5% का डाउन मूव था, उसके बाद इस स्टॉक में छोटा सा अप मूव आया था, विच मीन्स इसके अंदर एक स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया था। सो आप इवेंचुअली दोनों साइड को स्कैन कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने बेंचमार्क और सेक्टोरल इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली आप उसकी बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ और मोर इंडिकेटर्स, आप अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आप उसको और अपग्रेड कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, एंड यू विल सी दैट योर कन्विक्शन इज गेटिंग बेटर। So this was all for the, this was just a synopsis of the price scans. Now we have volume and delivery scans. तो अगर मैंने वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स का बात किया था, तो हम लोग वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन दिस वीक का बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक का बात करूं, तो उसमें जैसे मुझे ये 5 स्टॉक दिख रहा है। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? वॉल्यूम एंड डिलीवरी इज अ वेरी important component of understanding markets, of understanding the trend and the liquidity in any stock. फॉर एग्जाम्पल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर जो डिलीवरी आया, दैट डिलीवरी वाज 4.1x ग्रेटर देन एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी ऑफ 5 वीक्स। यू विल सी कि वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स का 3 स्कैन्स है, दैट इज डेली स्कैन्स, वीकली स्कैन्स एंड मंथली स्कैन्स, एंड हर स्कैन्स के अंदर एक एवरेज हम लोग ने यूज किया है। सो डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, एवरेज इज डिफाइंड। इफ इट इज अ डेली स्कैन, then average is 5 days, 5 trading days. If it is a weekly scan, then it is average is 5 weeks, average of 5 weeks. And same way, if it is a monthly scan, then average is 5 months. So eventually हर स्कैन एक शॉर्ट, एक पीरियड को डिनोट करता है। डेली बेसिस इज फॉर द डेली ट्रेडिंग, वीकली बेसिस के लिए आप थोड़ा शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए आप इसको ट्रेड यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म स्कैन्स को देखना है कि लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स और बेटर आउट परफॉर्म करेंगे, किस स्टॉक्स के अंदर बेटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, देन यू कैन विजिट दी मंथली स्कैन्स। सो एज यू कैन सी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, दैट इज हाफ अ वीक, नॉट इवन एग्जैक्टली हाफ अ वीक, सिर्फ 2 ट्रेडिंग डे के अंदर पिछले 5 वीक्स का एवरेज से 4.1x का ग्रोथ आया। एंड अकॉर्डिंगली सेम वे ट्रेडेड क्वांटिटी भी 4.3x से ग्रो किया। एंड इवेंचुअली यू कैन सी कि स्टॉक का प्राइस भी 6.5% से इंक्रीज हुआ। मतलब इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुआ, and eventually people have bought the shares of this stock within these 2 days, and they have taken back these stocks for delivery, right? तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है कि people are accumulating this stock in this 2 day period। जैसे जैसे हो सकता है कि ये दिन और ये वीक और आगे बढ़े, तो ये जो नंबर है ये और डे बाय डे इंक्रीज होता रहे। फ्राइडे तक हो सकता है ये 7x या 8x हो जाए। तो इवेंचुअली विल गेट टू सी कि हाँ, ये स्टॉक के अंदर और प्राइस मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि द डिमांड इज राइजिंग फॉर द स्टॉक्स ऑफ दिस, फॉर द शेयर ऑफ दिस रेस्पेक्टिव स्टॉक। तो ऐसे करके आप अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हो कि हाँ, इस स्टॉक के अंदर अगर कोई प्राइस एक्शन आ रहा है, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर कोई प्राइस एक्शन आ रहा है, अगर इफ दैट प्राइस एक्शन इज ओनली द प्राइस एक्शन, एंड उस स्टॉक के अंदर कोई वॉल्यूम एंड डिलीवरी का एक्शन नहीं है,
मतलब there is no jump in the volume and delivery, and there's just the price action, then it can be considered as a uh, fake trend, or someone is trying to manipulate or something like that. Because जब भी किसी स्टॉक के अंदर अगर प्राइस मूवमेंट आ रहा है, either upside or downside, and if that price movement is backed by great volume and delivery volumes, I mean to say great volume and delivery, then that is a strong signal to track. So now let's come to the technical scans. So like I said, there are n number of technical indicators available in the market, n number of technical indicators, and we at Stockage have tried to cover almost all the relevant indicators that are very useful and very important in the market. But still अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि अगर ऐसा कोई इंडिकेटर है जो यहाँ पे नहीं है, एंड जो आप लोग को चाहिए या आप लोग को दरकार है, या यू फील दैट दैट मस्ट बी वेरी यूजफुल, then please do reach out to us or our support team and raise out your request, and we'll surely look into it and we'll see कि अगर हम लोग उन सारे indicators को भी हम लोग के ऐप पे incorporate कर पाए. So let's start with simple moving average. So we have these number of technical indicators. अभी recently हम लोग ने weekly RSI scans, weekly parabolic scar scans and weekly super trend scans भी launch किया in the latest release. अगर आप लोग को नहीं मिला है then please update your application, आप लोग को ये दिखने लग जाएगा. So let's start with simple moving average scans. For example, so simple moving average, what is SMA? SMA is a moving average. बेसिकली हम लोग यहाँ पे एवरेजेस का बात कर रहे हैं. तो अगर आप लोग को जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, जिन लोगों को नहीं पता मैं वो लोग को बता दूं कि व्हाट इज अ 20 SMA. 20 SMA इज द एवरेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज. 20 ट्रेडिंग डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज है वो है मेरा आज का 20 SMA का वैल्यू. सेम वे में 50, सेम गोज फॉर 100, सेम गोज फॉर 200, इसी करके मल्टीपल्स है. सो दे आर मल्टीपल स्कैन्स, एंड SMA बहुत हेल्प करता है, एंड almost all the traders use SMA or EMA in their trading strategies for understanding the trend of the stocks. And many investors also use the SMA scans, SMA and EMA scans to uh, pick out and to filter out stocks that can give a good decent return in the long term or in the short term. So obviously अभी जो मार्केट है वो खराब है, अभी इट इज नॉट अ बुलिश जोन. वरना ये जो आपको यहाँ पे दो स्कैन दिख रहा है, 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम अबव, एंड 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो एंड फ्रॉम अबव, ये जो दोनों स्कैन है ये दोनों गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर के नाम से जाना जाता है. 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो इज द गोल्डन क्रॉसओवर, and 50 SMA crossing 200 SMA from above, it is the death crossover. गोल्डन क्रॉसओवर इसीलिए क्योंकि अगर कोई स्टॉक का 50 SMA अपने 200 SMA को नीचे से क्रॉस करके बन रहा है, देन दैट स्टॉक इज इन अ बुलिश जोन. वो स्टॉक एक बहुत अच्छे जोन में एंटर कर रहा है, एंड आने वाला कुछ टाइम में, मतलब आने वाला शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में से 3 to 4 मंथ को एक स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है. सेम गोज विद 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम अबव. ऑब्वियसली अभी मार्केट्स वीक है, तो उस मार्केट्स वीक के अंदर जो स्टॉक्स अभी सबसे ज्यादा वीक है इन मेजर स्टॉक्स, उसमें से ये 5 नाम है. फॉर एग्जाम्पल SIS लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर डेथ क्रॉस ओवर फॉर्म हुआ है, दैट इज इसका जो 50 SMA है वो अपने 200 SMA को ऊपर से क्रॉस कर रहा है. सो मैं आप लोग को इसका इम्प्लीकेशन समझाता हूँ. सो ये है 5 ईयर का चार्ट. 50 SMA ये जो पिंक लाइन है ये वो है, एंड 200 SMA इज द ग्रीन लाइन. तो जब जब इसी चार्ट के अंदर मैं आप लोग को दोनों चीज बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है बुलिश एंड बेयरिश अट्रैक्ट करने में. अगर कभी भी ये जो पिंक लाइन है दैट इज 50 SMA, 200 SMA को नीचे से क्रॉस करेगा, मतलब तब दैट इज अ बुलिश जोन, तब वो बुलिश ट्रेंड में है. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट से यहाँ तक वो स्टॉक एक बुलिश जोन में गया, उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लग गया. फिर इस स्टॉक ने एक यहाँ पे एक डेथ क्रॉस ओवर दिया एंड वो यहाँ पे नीचे आया. उसके बाद फिर एक दैट वाज अ स्मॉल फेक क्रॉस ओवर. फिर इस स्टॉक ने वापस से यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर दिया, दैट इज 50 क्रॉसिंग अबव 200 SMA. उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक कहाँ तक गया है. उसके बाद फिर वो स्टॉक यहाँ तक गिरा नीचे, एंड उस स्टॉक ने एक डेथ क्रॉस ओवर दिया है.
सो आप चेक कर सकते हो कि एट दिस पॉइंट जब उस स्टॉक ने नीचे अपना गिरना चालू किया 50 एसएम में, बट आप देखोगे 200 एसएम में डिक्लाइनिंग ही था। सो जिस स्पीड से 50 एसएम में नीचे गिरा, उससे समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अपने 200 एसएम को क्रॉस करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से फिर वो वापस नीचे चला गया। सो इसी तरीके से आपको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कि कब किसी स्टॉक के अंदर एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है, बेरिश ट्रेंड बन रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसएमए एंड ईएमए काफी ज्यादा काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर बना और बेरिश क्रॉसओवर बना, दैट इज 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम अबव। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक कहाँ तक नीचे जाके रुका है एट दिस पॉइंट। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से इतना नीचे तक गया है, दैट इज फ्रॉम विच प्राइस पॉइंट्स, फ्रॉम 437 टू 350, स्ट्रेट अवे 20% का डिक्लाइन आया। उसके बाद फिर स्टॉक के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर बना एट दिस पॉइंट, एंड देन वो स्टॉक अभी उसके बाद इस स्टॉक ने वापस एक 20%, more than 20% का एक जंप दिखाया, and eventually this stock is again moving into a bearish crossover zone. So this is the power of SMA and EMAs. ये सेम वे में वर्क करता है, बीट फॉर बेयरिश क्रॉसओवर, बीट फॉर बुलिश क्रॉसओवर। ऑब्वियसली आपको, जैसा मैंने कहा, आपको मल्टीपल और अदर इंडिकेटर्स के साथ ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या कोई फेक क्रॉसओवर तो नहीं है, या इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर एंड ये आगे और कंटिन्यू नहीं करेगा। तो दिस वाज फॉर द SMA, वैसे सेम गोज फॉर EMA। देन वी हैव CCI scans, RSI scans. Like I said, for RS55, RSI is also a very favorite indicator of Vivek sir, Vivek Virat sir. And अगर आप लोगों ने विवेक सर का वीडियोस देखा होगा या विवेक सर का पोस्ट देखा होगा, then along with RS55 he also uses this RSI indicator, and it is a combined indicator for him, and it helps him a lot in identifying key good stocks, and when to entry and when to exit stocks एट राइट लेवल्स। सो इसीलिए आप लोग ये सारा ट्रैक रख सकते हो कि आरएसआई क्या है, व्हाट इज आरएसआई, किस बेसिस पे आरएसआई पे एंट्री एग्जिट्स बनता है, किस बेसिस पे RS55 पे एंट्री एग्जिट्स बनता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप अपना एंट्री एग्जिट्स को सुधार लोगे, देन इवेंचुअली विल सी कि आपकी जो ट्रेडिंग बेट्स है या इन्वेस्टमेंट बेट्स है और बेटर होते जा रही है, एंड आपका जो एक्यूरेसी लेवल होगा एंड कन्विक्शन होगा, दैट इज इंक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल RSI ट्रेंडिंग अप, RSI अगर RSI का वैल्यू अगर 50 के ऊपर क्रॉस करता है नीचे से, तो हम लोग उसको RSI ट्रेंडिंग अप बोलते हैं। आप किसी भी स्कैन का आइकन पढ़ोगे या किसी भी स्कैन का आई सेक्शन पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दैट स्कैन इज ऑल अबाउट। आप इससे ये ट्रैक रख सकते हो कि कौन सी स्टॉक्स है जो RSI के ओवरबॉट जोन में है, RSI के ओवरसोल्ड जोन में है। ये था फॉर डेली ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर एसेस करना है कि व्हाट आर दी स्टॉक्स ऑन अ बुलिश लेवल और बेरिश लेवल, देन यू ऑल कैन चेक द न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वीकली RSI स्कैन्स। तो आप उसके साथ भी चेक करके आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं अगर आप लोग को एक और स्कैन का, आप लोग को दो तीन स्कैन का रेफरेंस समझाता हूँ। अगर आप लोग को रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कब किसी स्टॉक के अंदर बुलिश से बेयरिश रिवर्सल आ रहा है या बेयरिश से बुलिश रिवर्सल आ रहा है, देन उन सब के लिए आप लोग के पास जैसे सुपर ट्रेंड स्कैन है, पैराबोलिक स्टार स्कैन है। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ सुपर ट्रेंड स्कैन का। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाय, इसका मतलब क्या है कि सुपर ट्रेंड सिग्नल पहले अभी तक सेल था, एंड कल ही इस स्टॉक के अंदर बाई सिग्नल्स कन्वर्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टीटा का रेल रेल सिस्टम्स का बात करते हैं। तो टीटा का रेल सिस्टम्स के अंदर 3 मंथ का चार्ट के अंदर इसमें हम लोग देखा कि कल एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ। तो लेट्स सी इट ऑन अ 1 ईयर चार्ट। ओ माय गॉड, इस स्टॉक में तो खाली बाइंग सिग्नल ही था। लेट्स अंडरस्टैंड ये बाइंग सिग्नल आया कब था। यहाँ पे अगर आप देखोगे टीटा का रेल सिस्टम्स का चार्ट, आप देख पा रहे हो कि हर एक बाइंग सिग्नल, तो ये आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब जब एक लाल लाइन ऊपर में प्राइस के डिनोट कर रही है, ऊपर में बन रही है, तब तक वो सेल सिग्नल में है। एंड जैसे ही दिस रेड लाइन कम्स बिलो द प्राइसेस एंड टर्न्स ग्रीन, दैट मीन्स अ सेल सिग्नल इज जनरेटेड। So you can see at this point a sell signal was generated. Then again at this point, a buy signal was generated, pardon me. And at this point, as soon as the red line started forming, a sell signal was generated. And again at this point, that is on 6th March 2023, that is, yeah, 8 March 2023, there was a buying signal generated
as per the super trend, and we can see that the respective buying signal lasted for how long. The buy signal was generated at the price of 226 and it closed at a price of 1014 rupees. That is straight away 5x growth. So it is not like ki trading technical indicators only help traders to take their bet. There are many investors who trade in good fundamental stocks only on the basis of strong technicals, only on the basis of strong technicals, because they want to have their entry exits very strong at good levels. Because the main reason for people making out losses is that they enter at very high levels, they enter at very wrong levels, and they are not able to get a good position, due to which they exit early or they exit in losses. So अगर आप लोग गुड अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो एंड उन सारे स्टॉक्स के अंदर अगर आप टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑन द कंपेयरिंग टेक्नो फंडा, जो विवेक सर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि ओनली इन्वेस्ट इन दोज फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स जो टेक्निकली साउंड भी है एंड टेक्निकली साउंड होने की वजह से वो उनका एंट्री एग्जिट उसी अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो उसके बेसिस पे आप अपना एंट्री एग्जिट्स को प्लान करोगे टेक्निकली, तो आपको समझ में आएगा कि आप भी ऐसा इन्वेस्टमेंट्स तौर पे भी आप ये चीज कर सकते हो कि जब तक आपको टेक्निकली किसी स्टॉक के अंदर एग्जिट नहीं मिल रहा है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सो एज वी कैन सी कि इस स्टॉक के अंदर 1014 पे एक सेल कॉल आया था एंड अभी वापस है 978 रुपीज पे इस स्टॉक के अंदर वापस एक बाई कॉल जनरेट हो चुका है। अब विल ऑब्वियसली हैव टू सी कि ये बाई कॉल कितना दिन तक सस्टेन करता है एंड ये बाइंग कॉल कैसा आगे मूव करता है। तो अकॉर्डिंगली वी यू कैन ऑल्सो फिल्टर आउट वो सारे स्टॉक जिसके अंदर सेल सिग्नल आया, या वो सारे स्टॉक जो अपने सुपर ट्रेंड सपोर्ट से आके वापस घूम जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अजंता फार्मा, वो 255 डेज के से बाइंग सिग्नल पे ही है। सो ये सारे जो स्कैन्स है ये आपको ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर बुलिश से बेरिश जोन आ रहा है या बेरिश से बुलिश ट्रेंड आ रहा है। सो जो पीपल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स आउट देयर हु ट्राई टू बेट ऑन दो स्टॉक्स जिनके अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, फॉर देम सुपर ट्रेंड स्कैन्स और पैराबोलिक स्कैन्स आर वेरी मच यूजफुल। And accordingly, we have also launched the weekly parabolic star scans and weekly super trend scans. तो अगर आप weekly super trend scans level पे देखोगे, for example, weekly super trend signal change to sell, अगर आप विप्रो का ही चार्ट देखोगे, दिस इज ऑन अ वीकली लेवल, तो आप देख सकते हो कि मैं 5 ईयर का चार्ट लगाता हूँ। एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट राइट, 22 जनवरी 2022 को ही विप्रो के अंदर एक सेल कॉल आ गया था एंड एट दैट टाइम द प्राइसेस वाज एट 605 एंड उसके बाद वो प्राइसेस यहाँ पे आके अटकी है, दैट इज 401। सो अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते, अगर किसी भी यूजर का किसी भी इन्वेस्टर का अगर एट दिस पॉइंट अगर वो विप्रो में इन्वेस्टेड रहता है एंड उसके अंदर अगर एक ऐसा वीकली लेवल पे सिग्नल आ रहा है विच मीन्स कि दिस विल बी मोर प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ मोर प्रोलॉन्ग पीरियड, तो वहां पे पीपल कैन एग्जिट देयर पोजिशन एंड ऑब्वियसली उनका ये जो डाउनफॉल था उसमें से उससे ये बच जाते। So this is the power of technical indicators, and if used well, if understood well, then obviously, and if combined well with good other indicators, then obviously you guys can enter, you guys can increase your accuracy, and your entry exit levels can be much more accurate than what is it currently now. So this was all about the technical scans. There are multiple technical scans, and let me tell you, no one trader or no one investor can use all the indicators. आप लोग कोई भी सारे के सारे इंडिकेटर्स को यूज करने मत जाओ, मत समझो। आप लोग कुछ कुछ इंडिकेटर्स के साथ स्टार्ट करो समझना कि हाँ ये इंडिकेटर क्या है, व्हाट दिस इंडिकेटर इज ऑल अबाउट, ये इंडिकेटर क्या कैप्चर करता है, क्या डिनोट करता है, इसके अंदर कैसे सिग्नल्स मिलते हैं। आप लोग चार इंडिकेटर को समझो, उससे पहले दो इंडिकेटर को समझो, दो इंडिकेटर पे आप लोग पूरा अपना ग्रिस्प बनाओ एंड उस दो इंडिकेटर के बेसिस पे आप लोग देखो कि आप लोग का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सूट कर रहा है क्या, आप लोग का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सूट कर रहा है क्या। इफ यस, देन स्टिक टू विथ। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं उस दो इंडिकेटर के बेसिस पे काम नहीं कर रहा, स्टैंस काम नहीं कर रहा, देन
मूव ऑन टू सम अदर इंडिकेटर, सम अदर स्कैन। क्योंकि आप अगर एक सिंगल टाइम में अगर सारे इंडिकेटर्स को कैप्चर करने जाओगे तो इट विल बी वेरी ट्रबलसम एंड वेरी हेक्टिक फॉर यू, एंड इट वोंट बी वर्थ द रिवॉर्ड। जितना आप लोग का एफर्ट लगेगा उससे कहीं ज्यादा आप लोग को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसीलिए गो स्लो। आप लोग एक एक इंडिकेटर को समझो, एक एक इंडिकेटर को यूज करो, उसके स्कैन्स को समझो, उसका जो आउटपुट है उसको ट्रैक रखो, बैक टेस्ट करो, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि आपको आपका जो फेवरेट स्कैन्स है या आपको आपका जो फेवरेट इंडिकेटर वो आपको अपने आप मिल जाएगा, जो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करेगा। सेम वे वी हैव फंडामेंटल स्कैन्स। जैसे मार्केट में देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, वैसे मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ फंडामेंटल पॉइंट्स, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, स्कैन्स को, सेल्स को लेके, शेयर होल्डिंग को लेके, डिविडेंड्स को लेके। तो व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव कैटेगराइज ऑल स्कैन्स on the basis of key fundamental parameters, that is profitability, turnover, solvency, cash flow, valuation, dividend scans, efficiency scans, shareholding, promoter holding pairs, corporate activity. So ये सारे वो स्कैन है जिससे आपको, जिसको यूज करके आप अच्छे साउंड फंडामेंटल कंपनीज को भी फिल्टर कर सकते हो, एंड खराब फंडामेंटल कंपनीज को भी आप फिल्टर कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years। तो अगर आप ये सारे स्कैन्स अभी रिसेंटली रिलीज के अंदर ही लॉन्च हुए, अगर आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अभी आज तक का लास्ट 10 years का हाईएस्ट, जिन्होंने एनुअल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो उसके बेस आप ये चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एमएमटीसी, MMTC, if you can see that this stock has reported 108.72 crores of net profit in 2019-03, एंड उसके बाद इस स्टॉक को 4 साल लग गए, एंड इस 4 साल में स्टॉक ने 108 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं, दे वर नॉट एबल टू रिपोर्ट दैट। एंड इन 2023-03, दैट इज लास्ट ईयर, this stock has reported a whooping 1562.27 crores, that is straight away 14.4x jump। तो इस स्टॉक के अंदर पक्का या तो कोई फंडामेंटल एडवांसमेंट हुआ होगा, सेल्स इंक्रीज किया होगा, या इन्होंने, इनको एक नया अच्छा ऑर्डर मिला होगा, विच कैन बी अ गुड रीजन फॉर दिस जंप इन नेट प्रॉफिट। एंड इवेंचुअली अगर आप इस स्टॉक का, अगर आप चार्ट जाके देखोगे तो इसका 1 year का चार्ट कुछ ऐसा आप लोग को दिखेगा, लाइक दिस। तो ऑब्वियसली कोई भी, अभी रिजल्ट सीजन वापस से चालू हो रहा है, तो आप लोग के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू आइडेंटिफाई दोज कंपनी जो अभी आज तक का अपना हाईएस्ट ऑपरेटिंग, हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस स्टॉक एमएमटीसी लिमिटेड, ये स्टॉक अप्रैल के टाइम पे, दैट इज लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम पे, इट वाज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज। इसी टाइम पे उस स्टॉक ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया होगा, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कैसा आगे जाके मूव किया है, एंड स्टॉक मेड अ हाई ऑफ somewhere around 94 rupees, that is straight away 300x 300% return in just a span of 1 year। तो जो स्टॉक्स अच्छा फंडामेंटली परफॉर्म कर रहे हैं या ग्रोथ दिखा रहे हैं, उनके अंदर भी अगर आप पैसा डालोगे तो आपका ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा बनेगा। आपको बस सही टाइम से सही तरीके से वेट करना पड़ेगा, एंड आपका एंट्री एग्जिट आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। सो अभी रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है, तो डू ऑल्सो यूज दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स एंड अदर काइंड ऑफ स्कैन्स टू फिल्टर आउट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स। वैसे ही करके हाई आरओई है, टर्न अराउंड स्टोरी, देयर एन नंबर ऑफ फंडामेंटल स्कैन्स जो जिसके आउटपुट काफी ज्यादा अच्छे हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू फिल्टर आउट गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। कंसिस्टेंटली हाई पैट मार्जिन्स, हाई एबिटा मार्जिन्स, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टरली एपीएस। वैसे ही हम लोग का टर्नओवर स्कैन्स है, कौन से स्कैन्स है जो सेल्स जिसका बहुत अच्छा हो रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, या हाईएस्ट सेल्स हो रहा है 10 साल के अंदर। तो ऐसे करके यू कैन सी मल्टीपल नंबर ऑफ स्कैन्स। डिविडेंड स्कैन्स भी है फॉर ऑल दो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर जो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड का हर साल पे करती है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है, एंड ज्यादा डिविडेंड पे करती है। ये वो सारे स्टॉक्स है जो अपना अच्छा खासा डिविडेंड, पार्डन मी, जो अपने नेट प्रॉफिट का अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। जस्ट गिव मी 1 second।
यस, तो दीज आर दी डिविडेंड स्कैन्स। वैसे करके शेयर होल्डिंग स्कैन्स है कि आपको ये सारे स्टॉक्स को समझ में आए कि किसके अंदर प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, एफआईज अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स अपना होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, या कंसिस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है। तो आपको शेयर होल्डिंग रिलेटेड कुछ भी जानना है तो उसके लिए शेयर होल्डिंग स्कैन्स भी है। इवेंचुअली यू कैन, आप लोग को आज ही जाना चाहिए एंड सारे अपने जो आपको जो जो की पॉइंट समझ में आए, जो आप लोग को फंडामेंटल इंडिकेटर समझ में आए, उस इंडिकेटर्स का स्कैन को आप लोग को समझना चाहिए कि कैसा आउटपुट आ रहा है। देन वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन्स, देन वी हैव स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स, में भी हम लोग उसका उसके अंदर नहीं जाते हैं। एंड देन वी हैव कैंडलस्टिक स्कैन्स। कैंडलस्टिक स्कैन्स आर आल्सो वेरी पावरफुल एंड इट इज आल्सो वाइडली यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आउट देयर, बिकॉज एक एक कैंडल स्टिक भी काफी कुछ ज्यादा डिनोट करता है अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टॉक, फॉर दैट रिस्पेक्टिव डे या टाइम इंटरवल। एक सिंगल कैंडल भी काफी ज्यादा डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल बुलिश कैंड्स के अंदर आप देखोगे व्हाइट मारुबोजू, दैट इज, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ग्रीन कैंडल। कि किसी स्टॉक के अंदर आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा ग्रीन कैंडल बना कि देयर इज नो विक, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं, बायर्स ही है। इसलिए आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर 7% का मूव बना। आप देख सकते हो कि ऑन 15th ऑल्सो इस स्टॉक के अंदर एक व्हाइट मारुबोजू बना था, एंड देन वापस से व्हाइट मारुबोजू, इसका जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ, एंड येस्टरडे ऑल्सो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट आया। तो आप देख सकते हो कि 2 ही दिन के अंदर इसके अंदर 10% से ज्यादा का मूवमेंट आ चुका है। सो एक सिंगल सिंगल कैंडल्स भी काफी ज्यादा डिनोट करता है। सो टू अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक स्कैन्स भी, आप अगर एक एक स्कैन को समझोगे, हर एक स्कैन का आई सेक्शन को आप पढ़ के समझ सकते हो कि व्हाट डज दैट कैंडल पैटर्न सिग्निफाई। कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, देन हैमर पैटर्न, डोजी कैंडल। हर एक कैंडल का अलग अलग मतलब होता है, जिससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा। कि इवेंचुअली अब जैसे जैसे इसको सारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर all these candlestick patterns all about. So let's see, that was all for the scan section. Let's understand ki what are the Q&A questions and answers. नागेंद्र जी, आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड हर वॉच लिस्ट के अंदर आपका एक स्कैन सेक्शन है जिसके अंदर जो जो स्टॉक जिस स्कैन में क्वालिफाई किया वो आपको दिख जाएगा वहां पे। मनोज कुमार जी, आप किसी भी स्कैन के अंदर जाके चेक कर सकते हो कि उसका स्कैन का आई सेक्शन में कौन सा ऐसा, कौन सा, हर एक स्कैन के आई सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि उसमें जो वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो प्रवीर कुमार घोष जी, आज 17 तारीख है, इसीलिए कल ये जो डेटा है ये कल तक का है, क्योंकि कल मार्केट खुली थी, आज मार्केट बंद है। गणेश जी, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो इसी बारे में है कि हम लोग कैसे मल्टीपल स्कैन को एक सिंगल स्कैन के अंदर ऐड करें। संजय पॉल जी, एडीएक्स इंडिकेटर के लिए आप प्लीज डू रीच आउट टू सपोर्ट टीम, या एडीएक्स इंडिकेटर्स का हम लोग का वीडियोस आप चेक कर सकते हैं कैसे यूज करना है, या अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है देन प्लीज डू रीच आउट टू सपोर्ट टीम एंड विल श्योरली लुक इनटू इट। संजय पॉल जी, हाउ टू यूज RSI 55, प्लीज लेट मी क्लियर। RSI is a different indicator and RS 55 is a different indicator. RSI 55 is ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 अलग इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI एक अलग इंडिकेटर है। सूरज तिवारी जी, हाँ ऑल टाइम हाई स्कैन है। Lal ji, we will be going for the combined scans right now only. William percentage R is also a technical indicator founded by a person, Mr. Professor William. Yes, EMA is also available. हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ फेक ब्रेकआउट, आपको इवेंचुअली आपको प्राइस के साथ आपका जो वॉल्यूम्स का जो मूवमेंट है, वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी का मूवमेंट, आपको वो भी ट्रैक रखना पड़ेगा, एंड फॉलोइंग में क्या प्राइस ब्रेकआउट आ रहा है ऑन द चार्ट्स आपको वो भी देखना पड़ेगा। प्रज्ञा जी, आपको जो बाई एंड सेल सिग्नल्स है वो आपको इवेंचुअली वहीं पे दिख रहा है। जैसे ही ग्रीन और रेड का जो कलर्स चेंज होता है, जैसी जो लाइंस है वो अगर अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसका मतलब ही बाई और सेल सिग्नल है।
तब इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ द लाइंस ओनली यू कैन जनरेट हाउ द बाय एंड सेल सिग्नल्स आर जनरेटेड. पीएस अग्रवाल जी, यस यू कैन सी द चार्ट ऑफ स्टॉक यूजिंग इंडिकेटर. आप किसी भी स्टॉक के अंदर उसके एच चार्ट में जाके आप किसी भी इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हो. ऑलरेडी जी, हर किसी का अपना अपना पैरामीटर्स होता है. 10.3 फॉर सुपर 10 इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर प्रोटोकॉल फॉलोड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, बट स्टिल पीपल यूज इट अकॉर्डिंगली एज पर देयर ओन प्रेफरेंस. ये संजय पॉल जी, हम लोग कंबाइन स्कैन बना सकते हैं. अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट कंबाइन स्कैन या आप लोग को बना के दिखाऊंगा. मुकुल वर्ष्ण जी, स्कैन जो है सारा का सारा यूडी डेटा है. ये यूडी पे प्रोसेस होता है, क्योंकि लाइफ के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल कि कभी कभी क्या होता है कि कोई स्कैन अभी जस्ट एक आरएसआई का ब्रेकआउट दिया, आरएसआई 50 क्रॉस किया, बट उसी के अंदर वापस सेलिंग आ गया और वो 50 के नीचे आ गया. तो इसलिए लाइफ के अंदर उन सबको ट्रैक रखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है. वो कई सारे फॉल्स सिग्नल्स मिल जाते हैं, इसीलिए हम लोग यूडी पे डेटा को ना स्कैन करते हैं, जिसके बेसिस पे जो स्टॉक जो फिल्टर होते हैं दैट इज ऑन द एक्चुअल डेटा. प्रज्ञा जी, कैन वी कंबाइन इट विद डिमांड एंड सप्लाई? आप ऑब्वियसली आप साथ में आप वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स को आप कंबाइन कर सकते हो. वॉल्यूम एंड डिलीवरी का जो स्कैन है आप उसको कंबाइन कर सकते हो, जिससे आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ जाएगा. So let's start. This was all for the scan. So without wasting any more time, let's start with the combination scans. So this is the Vivek sir's combination scan PDF, and it is a Techno फंडा कॉम्बिनेशन स्कैन पीडीएफ, जिसके अंदर आप देखोगे कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्कैन यूज करके उन्होंने कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाए हैं. एंड ये पीडीएफ आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दिया जाएगा. इसी में से एक कॉम्बिनेशन स्कैन में अभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल फीपा, फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन. तो हम लोग इसी को बनाते हैं. ऐड कॉम्बिनेशन, आप लोग को माई स्टॉकेट में जाना है, माई कॉम्बो स्कैन्स में जाना है, एंड यहाँ पे जाके ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन्स में जाके क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको स्कैन का नाम दे देना है. तो जैसे मैंने नाम दे दिया फीपा, हम लोग इसके अंदर क्लिक करेंगे. मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग टोटल में 20 कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो. 20 इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो. एंड हर एक इंडिविजुअल स्कैन के अंदर आप लोग मैक्सिमम ऑफ 10 इंडिविजुअल स्कैन्स ही ऐड कर सकते हो. रीजन बीइंग 10 इज कि आफ्टर हम लोगों ने कई बार इसको बैक टेस्टिंग किया है, एंड कई बार आफ्टर थॉरो एनालिसिस वी हैव कंक्लूडेड ऑन द नंबर ऑफ 10. क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 से ज्यादा इंडिकेटर यूज करने से आपको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट बहुत हेव हेजार्ड होता है. क्योंकि 10 इंडिकेटर, व्हाट वी हैव सीन कि 10 इंडिकेटर को यूज करने से मैक्स आप 5 इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो. बट अगर आप 10 कर रहे हो, 10 इज अ वेरी गुड मैक्सिमम नंबर, जिससे कि आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट विल बी अ कंसिडरेबल आउटपुट. एंड कुछ भी अनसन आउटपुट आप लोग को नहीं मिलेगा, राइट? कुछ भी बेकार आउटपुट आप लोग को नहीं मिलेगा. वी फील दैट 10 indicators is a very good number for combination scans. सो व्हाट विल डू राइट नाउ, अब हम लोग एक एक करके जो सारा स्कैन हम लोग वो स्कैन ऐड करना चालू करेंगे. तो सबसे पहले फीपा के अंदर जो स्कैन है दैट इज क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ढूंढते हैं. अब यहाँ पे ऐड करने का दो तरीका है. अगर आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वो स्कैन कहाँ पे है, किसके अंदर है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ऐसे जाके सर्च कर सकते हो. जैसे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन इज अंडर 52 वीक ब्रेकआउट. ये रहा क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, और आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर देना है. अगर आप लोग को नहीं पता है इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो. इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटडा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ये भी मैंने ऐड कर दिया. हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर,
हाई इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, ये भी ऐड कर दिया। कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस, कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस, तो जो सातों स्कैन थे मैंने वो सातों स्कैन को ऐड कर दिया। तो बिफोर मूविंग फर्दर टू द आउटपुट, हम लोग पहले इस कॉम्बिनेशन स्कैन को समझते हैं। आप लोग जब भी कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो तो आप लोग के दिमाग में उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से स्टॉक्स को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम लोग को वो स्टॉक्स को फिल्टर करना है जिसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड प्राइस एक्शन का मतलब है कि वो स्टॉक टेक्निकली बहुत साउंड है। ठीक है। तो टेक्निकली बहुत साउंड को फिल्टर करने के लिए व्हाट वी हैव डन है, जो विवेक सर ने क्या किया है कि क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन एक सिंगल स्कैन को लिया है। एक सिंगल स्कैन से हम लोग को ये कैसे पता चल रहा है कि वो स्टॉक अभी टेक्निकली साउंड है? वो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपने 1 ईयर हाई के पास अगर ट्रेड कर रहा है, दैट इज, आप कोई भी स्टॉक अगर अपने ईयरली हाई के जोन में ट्रेड कर रहा है, दैट इज 15% जोन में ट्रेड कर रहा है, मतलब वो अभी हाई जोन में ट्रेड कर रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर वो अपने हाई जोन में ट्रेड कर रहा है तो वो टेक्निकली बहुत साउंड है, क्योंकि वो जो नीचे से जो जर्नी था वो करके उस जोन में आया है। राइट। जो उसको नीचे गिरना था वो करके वहां पे आया है। तो वो एक अच्छे जोन में है। इसीलिए एक सिंगल साइन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हाँ, वो एक 52 वीक हाई जोन में है। अब हम लोग आते हैं उसका फंडामेंटल्स पे। अब फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को केटर करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स को केटर करना पड़ेगा, जैसे इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस दो स्कैन से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि उन सारे स्टॉक्स का जो इसमें क्वालिफाई होंगे उसका आरओई इंप्रूव हो रहा है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव हो रहा है। सो व्हाट इज आरओई? आरओई इज कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या रुपया बना के दे रही है, क्या रिटर्न बना के दे रही है। सेम वे में आरओसीई इज कि कंपनी जो रुपया अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है वो उस पे क्या रिटर्न बना रही है। तो अगर इन दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का, कंपनी अपने बिजनेस का इक्वली ध्यान रख रही है और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कर रही है, तो उससे मेरा ये वाला जो कंपनी स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कंपनी का मेन ऑपरेशंस पे। तो कंपनी का मेन ऑपरेशंस पे अगर आप लोगों ने कहीं भी सुना होगा, कोई भी इंसान या कोई भी एनालिस्ट सबसे पहले कंपनी का 3 नंबर देखता है, दैट इज द टॉप लाइन नंबर, बॉटम लाइन नंबर एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो टॉप लाइन क्या हुआ? टॉप लाइन हुआ सेल्स। बॉटम लाइन क्या हुआ? बॉटम लाइन नंबर हो गया नेट प्रॉफिट, सबसे नीचे का नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? दैट इज एबिटा। तो अगर किसी भी कंपनी का ये 3 चीज को अगर मैं ट्रैक कर रहा हूँ एंड ये 3 चीज के अंदर अगर मेरे को ग्रोथ दिख रहा है, ये 3 चीज मेरी ग्रो हो रही है, इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, कंपनी होलिस्टिकली अपने टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड ऑपरेशंस पे काम कर रही है एंड उसको ग्रो कर रही है। क्योंकि इस तीनों में से खाली एक ग्रो होने से उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तीनों में से खाली सेल्स ग्रो हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, तो विच इज अ बैड सिग्नल। अगर किसी कंपनी का सिर्फ नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है बट सेल्स और एबिटा ग्रो नहीं हो रहा, मतलब हो सकता है उस कंपनी के अंदर कोई रेड फ्लैग है, कंपनी अपने नंबर्स को मैनिपुलेट कर रही है। अगर हो सकता है उस कंपनी का सिर्फ एबिटा ग्रो हो गया, मतलब या तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम कर रही है या उसका कॉस्ट बाय बाय हो गया, तो इट कैन हैव मल्टीपल इम्प्लीकेशंस। लेकिन अगर किसी कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, एबिटा भी इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि हाँ, वो कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है, वो कंपनी अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर रही है। सो इट इज अ वेरी गुड सिग्नल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस पे। ये हम लोगों ने इसलिए किया कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो कंपनी को पास आगे क्या ग्रो करने के लिए फंड्स है। डज इज कंपनी केपेबल एनफ टू ग्रो फर्दर इन द फ्यूचर? सो उसके लिए कंपनी को कैश लगेगा, कंपनी को फंड्स लगेगा। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से हर हर टाइम अपना कंसिस्टेंटली कैश जनरेट कर पा रही है, सीएफओ, कैश फ्लो ऑपरेशंस, क्या वो जनरेट कर पा रही है? इफ इट इज यस, then obviously company is in a very sound position. The company will be able to grow and fund its working capital requirements and its long term capital requirements in the future. तो ये 7 स्कैन की वजह से हम लोग ने ये फिल्टर आउट कर लिया कि हाँ, इस 7 ऐसे जो भी स्टॉक्स आएंगे, दो स्टॉक्स आर फाइनेंशियली इंप्रूविंग विथ अ गुड साउंड टेक्निकल एक्शन। अब हम लोग आते हैं स्टॉक्स पे। तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स का लिस्ट दिख रहा है, तो ये वो सारे स्टॉक्स है, मेजर स्टॉक्स है जो परफेक्ट मैच है।
परफेक्ट मैच का मतलब कि ये वो सारे स्टॉक्स है जो सातों की सातों स्कैन को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप लोग अगर नीचे आके देखोगे, नीचे आके देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर भी है। तो व्हाट इज दिस ऑलमोस्ट देयर? ऑलमोस्ट देयर हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 7 में से मतलब होते हैं कि आपने जो स्कैन्स ऐड किया उसमें से ऑलमोस्ट हर स्कैन में क्वालिफाई करे, 1 या 2 के अंदर रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उनको भी फ़िल्टर करने के लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर का लॉजिक रख के रखा है। एंड व्हाट इज़ दिस ऑलमोस्ट देयर? अगर कोई भी स्टॉक आपने जितना भी स्कैन्स ऐड किया, व्हाटएवर द नंबर इज़ द ऑफ द scans that we have added. If any stock qualifies 75% of the total scans, 75% of the scans जो आपने ऐड किया है, then that stock will get filtered in the almost there section. तो इससे आपके क्या होता है कि अच्छे पोटेंशियल स्टॉक्स भी मिस नहीं होते। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज, यहाँ पे आपको फुल सेम फिल्टर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके बेसिस पे और आप फर्दर फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन भी मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि आप इसको फर्दर डाउनलोड करके एक्सेल में आप उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट दैट वर्क्स, जो बैक टेस्टिंग का जो मैंने आप लोगों को बोला देर, इसका मेन जो बेनिफिट है वो आता है कॉम्बिनेशन स्कैन्स में। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 3-4 अलग-अलग इंडिकेटर मिक्स करके कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, सम 3-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स, या आपने प्राइस एक्शन का इंडिकेटर्स, वॉल्यूम डिलीवरी, टेक्निकल मिक्स करके सब इंडिकेटर्स बनाया, या जैसे आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया फंडामेंटल एंड टेक्निकल को मिक्स करके। सो व्हाट विल हैपन इज कि आप इवेंचुअली आप पिछले दिन जाके लाइक यू कैन बैक टेस्ट योर कॉम्बिनेशन स्कैन फॉर द पास्ट 7 डेज, एंड उसके बेसिस पे आप अपना जो कॉम्बिनेशन स्कैन है यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द आउटपुट ऑफ योर कॉम्बिनेशन स्कैन्स, एंड इवेंचुअली यू कैन ट्रैक दो स्टॉक्स इन द अपकमिंग ट्रेडिंग डेज, एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू सी कि आपका जो कॉम्बिनेशन स्कैन का जो आउटपुट है वो स्ट्रांग है कि नहीं। इफ उसमें अगर आपको लग रहा है कि दैट कॉम्बिनेशन स्कैन का आउटपुट इज नॉट परफॉर्मिंग और नॉट वर्किंग इन द करंट मार्केट कंडीशंस, देन ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द कॉम्बिनेशन स्कैन। आप जा सकते हो वापस स्कैन्स के अंदर, यहाँ पे जाके अगर आपको किसी स्कैन को रिमूव करना है यहाँ पे क्रॉस करके आप वापस से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इवेंचुअली यू कैन टेस्ट एंड यू कैन प्ले अराउंड कि आप जो भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, ठीक है। सो आप अलग अलग स्कैन्स को टेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये कॉम्बिनेशन स्कैन का जो आउटपुट आ रहा है, दिस स्कैन आउटपुट मेरे को नेक्स्ट डे में इंट्राडे में मदद करेगा। तो अगर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बना ले रहे हो अपॉन ट्राई अपॉन ट्राइंग फॉर 3 to 4 टाइम्स कि 5 टाइम्स, कि अगर आप आउटपुट को अलग अलग बैक टेस्ट तरीके से बैक टेस्ट करके अगर आप ये आउटपुट एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बना लेते हो जो आपको हर दिन इंट्राडे में वो सारे स्टॉक्स फिल्टर करके दे रहा है जिसमें अगले दिन मूवमेंट आएगा, बीट ऑन द अपसाइड, बीट ऑन द डाउनसाइड, क्योंकि आपको इंट्राडे में बाई भी कर सकते हो एंड आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक लिस्ट में चाहिए और आप उसको टेस्ट करते रहोगे तो आपका आप देखोगे इवेंचुअली आपका जो ट्रेड है वो डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, एंड आपका कन्विक्शन और बेटर होता जा रहा है, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स होंगे वो पहले से आपके रेडार में होंगे। आपको अलग से ड्यूरिंग द मार्केट आपको वो सारे स्टॉक्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर द कॉम्बिनेशन स्कैन्स। मैंने आपको स्टॉक्स का सारा आपको बता ही दिया। दिस एग्जैक्टली लाइक द स्कैन्स मॉड्यूल, हाउ टू यूज इट, major stocks filter, the drop down of the back testing thing, download option, filter option. So this was all for the combination scan. So let's do a quick recap of Q&A session. कॉम्बिनेशन स्कैन राजेश जी, इसका पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। केके जी, I'm extremely sorry अगर आपको, if you find any difficulty in understanding, if you have any queries, then please do reach out to the support team, or you can ask the support team to reach out to me, and I will surely help in explaining all of your queries. And if there is any part of the training that is unclear to you, then please do reach out to us stating those points, and I will make sure that if I am able to explain all your points and solve all your queries in English itself. I'm trying to manage both in English and Hindi. I apologize for the same if you are finding any difficulty in understanding the same. Open equals to low candle का currently we do not have, Kalol ji, we do not have open equals to low candle का scan.
Yes, Anasuya ji, you can filter out only NSE stocks. राकेश कुमार जी, आपका जो ये क्वेरी है एशियन पेंट्स वाला, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड प्लीज रीच आउट टू द सपोर्ट टीम with your query, and what is your exact point, and I will surely reply to that query in the mail. Please check the PDF. I have sent the PDF. So this was all for the my combination scans. Now let's understand trending stocks. So in the trending stock section, market start at 9-7, or market start at 9 o'clock, and 9 to 9-7 the pre-market prices are finalized, and from 9-8 itself the pre-market prices start getting reflected over here, and from 9:15 itself, the very moment the market starts, you will see that the prices are getting updated over here every minute with every refresh. Okay. So in the price mover section, you will get the list of all the gainers and losers out there in the market, depending upon the filter. What you can also do is, over here also we have provided the buy importance filter, and you can apply the respective filter, be it major stocks, NSE stocks, BSE stocks, or NSE FO. If, for example, if you want to track those stocks, only futures and option stocks that are on the gainer side or on the loser side, you can apply the NSE FO filter. On Nifty 50 filter, 200, Nifty 500, or if you want to find out which are the PSU stocks in the gainer side or the loser side, then you can eventually apply the BSE PSU filter. This section will start getting updated from 9:15 itself with every minute. Okay, so this was all, and you can also download the section, and you can track what are the key stocks and which stocks you want to trade in. Then we have the volume shockers, right? So what do you get in volume shockers? Like I told you, volume and delivery scans. So volume shockers is a very this tab is a very important tab, because it will help you to back the movement, the list of stocks that is being shown in the price mover section. Like I said earlier, stocks with price movement along with volume movement are a very strong signal. Stocks with only price movement but no volume movement can be a false signal or can be a fake signal. So eventually you will have to be very cautious when analyzing stocks during intraday. ठीक है. So what do you get in volume shockers? For example, Honasa Consumer Limited. ठीक है. Honasa Consumer Limited, the average volume of previous average volume of 5 trading days was 172,381, 1,72,381. As soon as the stock the stock crossed above the average volume of 172,382 in yesterday during the trading market hours, this stock will start appearing over here. व्हाट डू आई मीन टू से इज कि जैसे ही इस स्टॉक का जो वॉल्यूम था वो 172,381 के ऊपर जाता, कल का वॉल्यूम, ये स्टॉक यहाँ पे आने लग जाता. इससे आपको क्या समझ में आता कि दीज आर दी स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर ही you will get to know which are the stocks that are having a volume which is greater than the previous 5 days ka average volume, which gives me a clear cut conviction that yes, these are the stock lists in which there's a momentum going on. People are trading into these stocks. The reason being, the volume is increasing every minute, right? That is the reason. If you see Honasa, there was a obviously 3.8% decline, but there was 9.6x times growth in the volume with respect to its 5-day average volume.
Same way में, if you see Titagarh Rail System, there was a 7% increase in price, and eventually there was a 7.3x growth in Titagarh volume. Obviously, in the initially when the stock crossed its average volume of 3,71,634, say somewhere around 4 lakh, if you would have been able to filter out the stock from this section, Titagarh Rail Systems, and seeing that this stock is showing buying momentum, then obviously you could have entered into the stock during the intraday and make an additional 2 to 3% if you would have been able to capture the stock at the right time. So volume shockers gives a strong confirmation to a price trends. Then we have the two most powerful sections of the trending stocks, that is 52-week high low and all-time high low. So what is 52-week high low and all-time high low? I'm explaining one, you will get to understand the different. So as soon as any stock makes a new 52-week high during intraday, you will get to see the name of the stock over here. That means you will get to filter out, you will get the filter list of all those stocks that have are giving or that will give a potential 52-week high or low breakout or all-time high or low breakout during intraday from this tab itself. For example, like I said, Exide Industries. Exide Industries ka on 15th, that was on Monday, उस stock का 423.65 का high था, and this was its 52-week high as on Monday, as on 15th, as on 16th, yesterday. That is, this stock opened at 410, and as soon as this stock cross above the previous 52-week high, that was 423.65, at somewhere around this level, you could have seen this stock name over there in the 52-week high low section, and then and there itself, if you would have found that this stock is in a very strong zone and this stock will rise further, then at the 425 level of, or at the levels of 427, 430, you guys could have entered in this respective stock, and after 430, that stock made a new 52-week high of 470.40. That was a clear cut 40-point move, and you guys could have easily made 4 to 5% in the intraday itself with the help of analyzing stocks from 52-week high low and all-time high low tabs. All-time high low tabs also works in the same manner. Those stocks that are able to make a new all-time high during intraday will get filtered over here. You can obviously filter, like I said, you can apply filter to the entire section over here, be it price movers, volume shockers, 52-week high low or all-time high low. And accordingly, as per your own filter, only those stocks will start coming over here and will get auto refresh every minute. So, like I said, key in the end, I will tell you all, and the last section is the most visited section, which is nothing but which is the list of stocks that are being most visited by the Stocked users. So this was all about the trending stocks, right? So if you track during the market hours itself, you will find ample list of opportunities. But for that, you need to be very clear in your mind before the market starts. So how to do that? So like I said, what we have done is कि हम लोग ने काफी टाइम से हम लोग ने स्टडी किया है कि what can be the best possible way to keep up to date from the markets and keep your analysis ready for the markets. So what you can do is just so like I said, what you all can do is you at the end of every day, what you can do is you can study your favorite scans. You can filter out the data using your favorite scans. You can filter out list of stocks using your favorite scans. Like I said, you should check and track some of these scans on a daily basis. And then what you can do is you can go and
make your combination scans or study and track your combination scans and filter out the stocks that you want to trade in the next market, in the next trading day, beforehand only. For example, you have made a list of 5 to 10 stocks, or you have tracked a list and analyzed and filtered out 5 to 10 stocks that you feel that might give momentum or that might give some bullish momentum or bearish momentum in the next trading day according to your trading strategy. So from and then from the next trading day, that is the next trading day, what you can do is you can open this trending stocks filter, trending stock section, and you don't need to do anything. You just need to keep a track that whether your 5 to 10 list of stocks are present over here in trending stocks or not. If yes, they are already present over here, then obviously your conviction and your confidence will boost up because you have already pre-identified those stocks over here. And then what you can do is you can filter out, or you can select the best stock that you feel that is best, that is looking best at that very moment, and you can eventually take a trade in that. Eventually take a intraday trade or take a swing trading trade or a BTST trade in that according to your analysis, because obviously it is not possible for any trader or for any investor to scan all 5,000 stocks during the market hours. You will have to do the hard work before market starts, right? So it is a continuous process. Before market starts, you will have to do your hard work, you will have to strategize, you will have to filter out stocks, and then you will have to execute your strategy, you will have to execute your stocks during the market hours, and you will have to test whether your strategy is working right or not. And again you will have to repeat the same process continuously, and eventually you will see that your process is getting better day by day, right? So this is how you can use scans, my combination scans and trending stocks to all together in sync and drive and upgrade yourself on a daily basis with the help of learning from your own mistakes and driving your own analysis. Because obviously there's nothing better than trading on the basis of your own analysis, making investments on the basis of your own analysis, and taking charge of your investments and trading position by all by your own rather than believing on someone else. KVS Rauji, FIPA and SIPA mostly helps in investments, but obviously some stocks act as swing trades. So obviously you can consider FIPA and SIPA both for investment and for swing trade as well. Anaswaji, from volume, how to trade, how to conclude whether buying or closing happened, you will have to check whether there's a selling pressure or whether there's a buying pressure. If the prices are declining and the volume is increasing, that means selling is happening at a higher pace. And if you see prices are increasing and volume is increasing, then you can see that buying is happen. Buying is being triggered at more. Amar Singh ji, ट्रेडिंग स्टॉक में कोई टाइम नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट मोमेंटम. मार्केट फ्लैट है कि मार्केट मोमेंटम में है, एंड इवेंचुअली आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड रख रहे हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टॉक टू स्टॉक एंड मार्केट टू मार्केट. नागेंद्र जी, यस, डेली एक एक ट्रेनिंग सेशन होता है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. आज का टॉपिक ये था, स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स. डेली का टॉपिक अलग अलग आता है, एंड आपके पास डेली स्मार्ट सेशन का जो टॉपिक है वो आपके पास ऑलरेडी चला गया होगा मेल में, सो यू कैन इवेंचुअली चेक. एंड इफ यू डोंट हैव, देन प्लीज डू रीच आउट टू द सपोर्ट टीम फॉर द डेली ट्रेनिंग सेशन लॉग. I've sent the PDF again, please check. एंड आप लोग को कोई भी क्वेरी है, या इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द फीचर्स इन स्टॉकेज, देन प्लीज लेट मी रिपीट. प्लीज डू रीच आउट टू द सपोर्ट टीम, stating your query, stating your confusion or or understanding whatsoever it is, and ask for any support, and we'll surely look into it, and we'll surely
try our best to guide you on the same. I guess all the queries are answered. And if there's any query, like I said, then please do reach out to our support team and raise out your queries. Yes, Anasuya ji, you will have the recording access. Every user will have the recording access. For recording access, you can check in the StockX social and your recording over there. You will get all the recordings, or else you can reach out the support team and or else you can reach out the support team and they will get back to you with the recording access. Sessions are on a daily basis and on weekly basis as well. Rosemary ji, it's not only about previous day data. Like in trending stocks, it is the data during the intraday, but the scans are based on the EOD data, that is analytics data. It is not, we do not see it on the previous day basis. We see it that we are providing today's data at the EOD so that you can get prepared for tomorrow's market session. Rosemary ji, how to get current day's data and update of 52-week high low, etc. You will, like I explained in the current session, you can get the current day's data and update of 52-week high low in trending stocks itself during the same market hours, during the continuous market hours. So thank you so much. Thank you everyone for this session. I hope you all liked it, and I would request you all कि आप लोग ने अभी जो भी सीखा, what you all have understood, go and try. At least give some time to stock, like what you have learned today, so that you can remember what you all have learned today and start and keep your stock market journey active and start analyzing and practicing. Thank you so much.